ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ORAP ਸਕੀਮ, 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ORAP ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪਰਸਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਔਰ ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ORAP ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਸਟੈਗਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 4 ਵੀਲਰ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 1, 2021 ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਦਵਦੇਵ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਪੈਰਿਸ ਮਾਸਟਰ 2020। ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਦਵਦੇਵ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜੈਵਰੇਵ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਸਿੰਦਰਨ ਕਾਲੀਨਕੀਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਸਾਥੀ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਸਸਿੰਦਰਨ ਕਾਲਕਨੀਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਯੂਰ ਬੈਸਟ ਡੇ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਯੂਰ ਬੈਸਟ ਡੇ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ। ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਆਥਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ A Song of India। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਪ ਔਨ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਟਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਮੈਰਲੇਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ, MCC ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ MCC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਲੇਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਨਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਅਰ ਕੌਨਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬਿਡਨ 46th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ USA ਦੇ 46th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ USA ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਬਿਡਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ
फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वूमेन कह सकते हैं प्लस फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन वाइस प्रेजिडेंट बने ने यूएसए दे। WhatsApp द्वारा 5 इंडियन बैंक्स के नाल पार्टनरशिप की गई है पेमेंट सर्विस के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और जियो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है एस हरीश, इंपोर्टेंट रहेगा, काफ़ी इंपोर्टेंट प्राइज है JCB प्राइज। लिटरेचर के फील्ड के दिता जाता, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि JCB प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो यह लिटरेचर के फील्ड के दिता जाता है। मुस्टैच बुक के लिए एस हरीश नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। बेसिकली इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि इसके सब तो ज़्यादा प्राइज मनी है, सब तो ज़्यादा प्राइज मनी वाला अवार्ड है एस हरीश नूं दिता गया है। प्राइज मनी 25 लाख रुपए। लिटरेचर के फील्ड के सब तो ज़्यादा प्राइज मनी वाला अवार्ड किहड़ा है JCB प्राइज। इंडिया के प्राइज मनी 25 लाख है। इस तो इलावा जिहड़े इसके ट्रांसलेटर होंदे ने उन्होंने भी 10 लाख एडिशनल अमाउंट दी जाती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश द्वारा फर्स्ट इस्लामिक स्कूल ओपन किया गया ट्रांसजेंडर मुस्लिम्स के लिए। ट्रांसजेंडर मुस्लिम के लिए फर्स्ट इस्लामिक स्कूल बांग्लादेश द्वारा। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन्हों द्वारा इंडिया की फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि मल्टी विलेज है यानी कि काफ़ी विलेजिज नूं फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इंडिया का पहला सोलर पावर बनाया गया कित्थे, दिबंग वैली, लोअर दिबंग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा इनोग्रेट किया गया डिप्लोमा कोर्स, एक रीडिजाइंड डिप्लोमा कोर्स नूं पटियाला के NIS नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेस है स्पोर्ट्स परसनस के लिए। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला दे विच डिप्लोमा कोर्स इनोग्रेट किया गया स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखा गया। तमिलनाडु नूं बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अवार्ड मिले नैशनल वाटर अवार्ड 2019 नैशनल वाटर अवार्ड 2019 जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड दिता गया तमिलनाडु। पंजाब की गल करते हैं, पंजाब ने मिशन 100% लॉन्च किया एम्पावरिंग स्कूल्स नूं एम्पावर करने के लिए। केरला गवर्नमेंट की गल करते हैं तो परिवर्तनम प्रोग्राम लॉन्च किया फिशिंग कम्यूनिटी की हैल्प करने के लिए। परिवर्तनम प्रोग्राम केरला गवर्नमेंट द्वारा। केरला टूरिज्म द्वारा ही वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंडन अवार्ड, केरला टूरिज्म द्वारा पाटा अवार्ड भी दिता गया PATA अवार्ड। इस तो इलावा वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंडन अवार्ड भी केरला टूरिज्म द्वारा ही जीत्या गया। पक्का टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के विच है। इसनूं फर्स्ट ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के विचों पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने की करे इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए ग्रीन सोल्जर्स के लिए। बेसिकली पक्का टाइगर रिजर्व की जी केयर करते हैं सोल्जर्स ने, बेसिकली कह सकते हैं कि जोड़े फॉरेस्ट ऑफिसर होंगे ने होर भी जिन्हें भी अपॉइंटमेंट्स होंगे ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विच, तो पक्का टाइगर रिजर्व के लिए ग्रीन सोल्जर्स कहा जाता है उन्होंने, और उन्होंने लिए इंश्योरेंस किया गया कोविड-19 के लिए। नागालैंड द्वारा हॉर्नबिल फैसटिवल इस साल वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हॉर्नबिल फैसटिवल है जोड़ा नागालैंड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। याद रखना है नागालैंड के विच नागा ट्राइब है, नागा विलेज के विच उत्थे इस फैसटिवल नूं ऑर्गेनाइज किया जाता है। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के विच द्रोणाचार्य अवार्ड डिस्कस कर रहे थे आपां। द्रोणाचार्य अवार्ड के विच लाइफ टाइम कैटेगरी के विच 8 परसनस नूं अवार्ड मिले। याद रखना है टोटल 13 द्रोणाचार्य अवार्ड दिते गए हैं। 8 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी के विच और 5 लोगों को रैगूलर कैटेगरी के विच। लाइफ टाइम कैटेगरी के विच 15 लाख रुपये है प्राइज मनी, 5 लाख तो इंक्रीज करके की गई सी, और रैगूलर कैटेगरी के विच 5 लाख तो इंक्रीज करके 10 लाख की गई है। इत्थे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एग्जाम के विच क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इस तो इलावा अगर आप गल करिए 4 नाम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, 4 अज आखिरी बार डिस्कस कर रहे हैं, कल नूं आपां नैक्सट 5 रैगूलर वाले डिस्कस करांगे। कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी दे लई, विजय बालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग दे लई, नरेश कुमार टैनिस दे लई और ओम प्रकाश दाहिया रैसलिंग दे लई। इन्हां दा नाम सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा। ओम प्रकाश दाहिया नूं रैसलिंग दे लई अवार्ड दिता गया, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचिज नूं दिता जांदा है, याद रखना। नैक्सट चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 10 नवंबर नूं। 10 नवंबर नूं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया गया, ठीक है जी। काफ़ी इंपोर्टेंट डे है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पूछा गया। अगर मैं गल करा तो आप एक एग्जाम जो महीने दिते हुए ने उन्होंने विचों भी एक एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस करके मैंने काफ़ी ईजिली याद है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया गया है। इस दिन की थीम की गल करिए तो साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इस दिन नूं ऑब्जर्व किया गया। इस दिन की थीम यह रही है, ठीक है जी। इस तो इलावा एक डे अपना स्किप हो गया सी 9 नवंबर। 9 नवंबर की गल करते हैं तो नैशनल लीगल सर्विसिज डे, नैशनल लीगल सर्विसिज डे, नैशनल लीगल सर्विसिज डे 9 नवंबर नूं ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। लीगल सर्विसिज की गल करते हैं, बेसिकली यह डे जिहड़ा 1987 दे विच एक एक्ट आया सी, लीगल सर्विसिज एक्ट। इस दे अंडर की कहा गया सी कि हर जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक पूरे तरीके नाल एंटाइटल करेगी, इस गल का पूरा ध्यान रखेगी कि जिहड़ा भी गरीब आदमी है अगर वो वकील नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा आदमी अगर किसी लीगल मैटर के सलाह चाहता है या फिर लीगल मैटर के कोई केस करना चाहता है तो वह वकील नहीं कर सकता, तो उसनों सरकार वालों फ्री वकील दिता जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है कि सरकार वालों उसनों फ्री वकील दिता जाए या फ्री एडवाइस दी जाए, ठीक है। तो इसे दिन को ऑब्जर्व करने के लिए नैशनल लीगल सर्विसिज डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। इस दे लई कोर्ट दे विच ऑफिसिस भी बने हुए हैं जिहड़े कि फ्री गवर्नमेंट सर्विसिज लीगल सर्विसिज प्रोवाइड करते हैं। इस तो इलावा आप बाकी दिन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया सी, ठीक है। 8 को हमने आप डिस्कस किया रेडियोग्राफी डे। नैक्सट चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वैल कि हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड। अज भी आप 2 बुक्स डिस्कस करांगे, द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड। चिल्ड्रनस के लिए एक बुक रिलीज़ की गई है द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड। इस बुक के ऑथर ने जुगल हंसराज, जुगल हंसराज द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। इस बुक के ऑथर कौन ने? द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड, जुगल हंसराज। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो काफ़ी इंटरस्टिंग बुक्स आप डिस्कस की हुई ने। एस हुसैन जायदी द एंड गेम, द एंड गेम बुक रिलीज़ की गई सी एस हुसैन जायदी द्वारा। बलदेव सिंह द्वारा किहड़ी बुक सी? बलदेव सिंह द्वारा सी सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कदे मरदा नहीं। इस बुक को किन्ना द्वारा लिखा गया सी? बलदेव सिंह द्वारा। मैरी ट्रंप जो कि नीस सीगे डोनाल्ड ट्रंप दे, जो कि यूएसए के 46th प्रेजिडेंट सीगे, ठीक है। यूएसए के 46th प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नूं इब्राहिम एकॉर्ड साइन करवाने के लिए की किया गया? नोबल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमीनेट किया गया, याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं मैरी ट्रंप की, इन्होंने द्वारा जी बुक लिखी गई सी टू मच एंड नॉट इनफ, टू मच एंड नॉट इनफ। इस बुक को रिलीज़ किया गया सी मैरी ट्रंप द्वारा। स्टीव वो क्रिकेटर ने इन्होंने द्वारा जी बुक लिखी गई सी द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ठीक है जी, याद रखनी है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ 12 मेंबर कोविड-19 टास्क फोर्स अनाउंसड बाय जो बिडन। जो बिडन की गल करते तो हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं कि नवे प्रेजिडेंट बननगे ये यूएसए के, ठीक है। इलैक्ट कर ले गए ने, ओथ लेनी बाकी है। यूएसए के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे। इन्हों द्वारा 12 मैंबर टास्क फोर्स बनाई गई है कोविड-19 के लिए। 12 मैंबर टास्क फोर्स बनाई गई है। इसके हैड कौन अपॉइंट किए गए हैं? विवेक
मूर्ति इंडियन ओरीजन ने बेसिकली करनाटका तो बिलोंग करते सी विवेक मूर्ति इन्हां नूं हैड अपॉइंट किया गया 12 मैंबर कोविड-19 टास्क फोर्स का। बेसिकली अगर गल करिए तो जो बिडन जिहड़े डेमोक्रेटिक पार्टी तो ने और विवेक मूर्ति ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी के काफ़ी अच्छे समर्थक रहे। अगर आप पुराने टाइम की गल करिए तो जो बराक ओबामा प्रेजिडेंट होंगे सी और जो बिडन वाइस प्रेजिडेंट होंगे सी इन्हां दे, तो उस टाइम भी इन्हां दे काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन सीगे। जो डोनाल्ड ट्रंप आए इन्होंने इन्हां दी पोस्ट तो इसनूं इन्हां नूं हटाता सीगा, ठीक है। उस टाइम भी ये सीनियर डॉक्टर की पोस्ट ते सीगे और इन्हां नूं हटा दिता गया सी। हुण जदों ये वापस आए ने तो आंदे सार इन्होंने पहला काम की करिया, विवेक मूर्ति नूं कोविड-19 टास्क फोर्स का मैंबर बनाया, हैड बनाया 12 मैंबर टास्क फोर्स। डॉक्टर ने विवेक मूर्ति। कमला हैरिस की गल करते हैं, वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। टी एस त्रिमूर्ति इंडियन डिप्लोमैट ने जिन्होंने यूनाइटेड नेशनस दे विच इंडियन रिप्रजेंटेटिव कह सकते हैं या एंबेसडर कह सकते हैं अपॉइंट किया हुआ। यूनाइटेड नेशनस दे विच इंडियन रिप्रजेंटेटिव या एंबेसडर कौन ने? टी एस त्रिमूर्ति। एम कुट्टी और MB लोकुर दोनों डिफरेंट कमेटीज़ ने, इतने कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस करके दोनों इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं कि MM कुट्टी नैशनल एयर क्वालिटी कमीशन के हैड अपॉइंट किए गए हैं। एयर क्वालिटी कमीशन कह सकते हैं जिहड़ा कि NCR रीजन के लिए NCR रीजन के विच एयर क्वालिटी नूं इंप्रूव करने के लिए बनाया गया, ठीक है। और MB लोकुर कमेटी बनाई गई सी स्टबल बर्निंग नूं रोकण दे लई। दोनों का काम इक्को ही है पर डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई ने स्टबल बर्निंग नूं रोकण दे लई ताकि पोल्यूशन नूं कंट्रोल किया जा सके। MB लोकुर फॉर्मर जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, मदन B लोकुर। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल्ड एट DRDO हैडकुआटर्स न्यू दिल्ली। DRDO के हैडकुआटर्स न्यू दिल्ली दे विच की किया गया है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का मॉडल लॉन्च किया गया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का मॉडल लॉन्च किया गया है तो किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया? ऑबवियस है कि मिसाइल सिस्टम है तो डिफेंस की कितने ना कितने गल आती है, तो डिफेंस सैक्टर राजनाथ सिंह, सॉरी फोर्थ ऑप्शन राजनाथ सिंह दे लवे, तो राजनाथ सिंह द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। हुण जिहड़ा राजनाथ सिंह है एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के बारे तुहानूं याद होएगा 2019 दे विच डिस्कस किया सी। 2019 दे विच भी अपने अगर आप गल करिए एग्जैक्ट डेट की तो मार्च दे विच डिस्कस किया सी। मार्च 2019 दे विच डिस्कस किया सी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम उस टाइम लॉन्च किया गया सी। हुण उसका एक मॉडल हैडकुआटर दे विच बनाया गया है कि मिशन शक्ति, किसी नूं याद होवे कि मिशन शक्ति के अंडर इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया सी ताकि अगर अपनी जिहड़ा इंडिया है, इंडिया के उत्ते अगर कोई सैटेलाइट नज़र रख रही है, किसी दुश्मन देश की सैटेलाइट नज़र रख रही है, तो उस नूं रोकण दे लई, उस सैटेलाइट नूं रोकण दे लई एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी और उस सैटेलाइट नूं खत्म कर देगी, ठीक है। सिक्योरिटी परपज़ दे करके आप इसनूं यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा सिस्टम रखने वाली इंडिया चौथी कंट्री बनी सी। उस टाइम भी आप डिस्कस किया सी। अगर आप गल करिए USA, इस तो इलावा रशिया और चाइना, ये तीन ऐसी कंट्रीज़ ने जिन्होंने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है और इंडिया चौथी ऐसी कंट्री बन गई सी इस तो बाद, ठीक है। याद रखना बेसिकली मार्च अगर जो मार्च में भी डिस्कस किया सी तो इसनूं लॉन्च करके टेस्ट फायर्ड भी किया गया सी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड तो। याद रखना है। बाकी ऑप्शनस के विच गल करते हैं तो जी सतीश रेड्डी DRDO के ही हैड ने, न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर डिस्कस कर लिया। DRDO नूं 1958 दे विच बनाया गया सी। के सिवान इसरो के हैड ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हैड कौन ने? के सिवान। अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने और होम मिनिस्टर ने। नितिन गडकरी की गल करते हैं तो नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री, इस तो इलावा MSME मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री और MSME मिनिस्ट्री है नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने, ठीक है। इसे करके आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज और मिनिस्ट्रीज बार बार डिस्कस करते हैं ताकि रिवीजन के नाल आपां नूं याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ अनाउंसड द 4th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 टू बी हेल्ड वर्चुअली।
ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2020 है ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस द 4th एडिशन। ठीक है 4th एडिशन है और वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो किन्ना द्वारा इसनू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किन्ना ने अनाउंस किया है? संजय धोत्रे। संजय धोत्रे, संजय धोत्रे कौन ने? संजय धोत्रे बेसिकली अगर आप गल करिए डिप्टी मिनिस्टर ने, डिप्टी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, डिप्टी IT मिनिस्ट्री भी इन्होंने लवे, इलैक्ट्रॉनिक्स और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इन्होंने लवे। संजय धोत्रे लवे एजुकेशन, इलैक्ट्रॉनिक्स, IT और कम्युनिकेशन 4 मिनिस्ट्रियों के डिप्टी चार्ज इन्होंने लवे। याद रखना है संजय धोत्रे। अच्छा इंपोर्टेंट की बनेगा? एक तो इंपोर्टेंट बनेगा कि किन्नवा एडिशन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 है जी ऑर्गेनाइज की जाएगी बेसिकली दिसंबर के 8 तो लैके 10 दिसंबर को इसनू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है इंपोर्टेंट की बनेगा? इसकी थीम, इसकी थीम है इनक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। इंक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल। ठीक है याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शंस दे विच निर्मला सीतारमन फाइनैंस मिनिस्टर ने इन्हां रिलेटेड एक न्यूज़ है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई सी, डिस्कस करते हैं। रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद लवे लॉ मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन और IT मिनिस्ट्री है। इन्हां दे कम्युनिकेशन और IT के डिप्टी ने संजय धोत्रे। रमेश पोखरियाल निशांक लवे एजुकेशन मिनिस्ट्री है और इस दे भी डिप्टी कौन ने? संजय धोत्रे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी UP तो लोक सभा MP ने, इन्होंने द्वारा आप कल भी डिस्कस करके हटे हैं कि शिपिंग मिनिस्ट्री नू नाम चेंज किया गया। ठीक है इस तो इलावा भी न्यूज़ है कुछ इनोग्रेट करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले निर्मला सीतारमन फाइनैंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री राज्य सभा MP करनाटका तो इन्होंने पहली मीटिंग अटेंड की है ब्रिक्स की फाइनैंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग की। ब्रिक्स कंट्रीज़ की फाइनैंस मिनिस्टर की मीटिंग पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई ब्रिक्स की, जिस दे विच इंडिया वालों निर्मला सीतारमन द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ब्रिक्स की गल करते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ दे विच 5 कंट्रीज़ ने, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है याद रखना है। ब्रिक्स के बैंक के बारे आप काफ़ी बार डिस्कस किया है। NDB की गल करते हैं, NDB का हैडक्वार्टर शंघाई चाइना के विच है, याद रखना है। और NDB के हैड रिसेंटली ब्राज़ील तो अपॉइंट किए गए हैं मार्कोस त्रियोजो। इस साल जो ब्रिक्स के समिट है, इस साल जो ब्रिक्स का समिट है कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? रशिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नैक्सट ईयर जी प्रेजिडेंसी आएगी इंडिया के लवे आ जाएगी। ठीक है ये भी याद रखना है। नैक्सट है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट किया जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस कम रेजिडेंशियल कंपलैक्स ऑफ इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसनू इनोग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा कि कित्थे किया है? तो कटक ओडिशा दे विच, ओडिशा का कटक है जी कटक सिटी है ओडिशा दे विच, इत्थे इसनू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच फिल्म हैज़ वॉन प्राइज इन 3rd एडिशन ऑफ बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020। 3rd एडिशन ऑफ बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, ये जो इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है इसका 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। इस दे विच फर्स्ट मूवी या कह सकते किस मूवी द्वारा प्राइज जितया गया? तो मूवी का नाम है नटखट। नटखट मूवी द्वारा प्राइज जितया गया। जी यह मूवी है बेसिकली इस मूवी के को प्रोड्यूसर और एक्टर इस मूवी के विद्या बालन द्वारा काम किया गया सी, फेमस अगर आप गल करिए। और इस मूवी के डायरैक्टर का नाम इंपोर्टेंट बनेगा शान व्यास। शान व्यास मूवी के डायरैक्टर का नाम याद रखना इंपोर्टेंट बनेगा शान व्यास। नटखट मूवी नू 3rd एडिशन बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड दिता गया। इस तो इलावा बाकी मूवीज़ का नाम भी रिसेंटली न्यूज़ के रहे सी। फॉर एग्जाम्पल परीक्षा मूवी के लिए एक्टर का नाम प्रकाश झा नू परीक्षा मूवी के लिए अवार्ड दिता गया सी इंडिया जर्मन फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड दिता गया जो कि बर्लिन के ऑर्गेनाइज किया गया सी। अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा प्रकाश झा नू बेस्ट एक्टर अवार्ड केड़ी मूवी के लिए दिता गया सी? परीक्षा मूवी के लिए। एक्टर का नाम याद रखना और मूवी का नाम याद रखना। ची लूपो मूवी के लिए
ची लूपो मूवी के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिता गया सी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ची लूपो मूवी के लिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। इस दे डायरैक्टर केजांग दी थोंगडोक। केजांग दी थोंगडोक नूं ची लूपो का मतलब हनी सीगा, हनी हंटिंग के लिए अवार्ड दिता गया सी। अरुणाचल प्रदेश तो बिलोंग करते सी यार रखने। गली बॉय मूवी के रिलेटेड भी आप डिस्कस किया सी। एशियन फिल्म फैसटीवल के रिसेंटली इन्होंने अवार्ड दिता गया है। इस तो इलावा आईफा अवार्ड के काफ़ी अवार्ड दिते गए थे, तकरीबन 13 अवार्ड दिते गए थे गली बॉय मूवी नूं। अंधाधुन मूवी के लिए आयुष्मान खुराना नूं अवार्ड दिता गया सी, नैशनल अवार्ड आयुष्मान खुराना नूं अंधाधुन मूवी के लिए। और इस तो इलावा विकी उन्होंने दिता गया सी, उन्होंने दिता गया सी उरी मूवी के लिए। उन्होंने किहड़ी मूवी के लिए दिता गया सी? उरी मूवी के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है अ बुक द हिटमैन। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है द हिटमैन, ऑथर्ड बाय विजय लोकापाली एंड जी कृष्णन। इज द बायोग्राफी ऑफ, बेसिकली अगर आप गल करिए विजय लोकापाली की, विजय लोकापाली एक ऐसे ऑथर ने क्रिकेटर के उत्ते काफ़ी बुक्स लिख चुके हैं। तो द हिटमैन बुक इन्होंने लिखी है रोहित शर्मा के उत्ते। रोहित शर्मा के नाम के उत्ते एक बुक लिखी गई है द हिटमैन। किन्ना द्वारा लिखी गई है? विजय लोकापाली और जी कृष्णन द्वारा। ठीक है, इन्हों की बायोग्राफी है। सिमिलरली विजय लोकापाली द्वारा ही विराट कोहली की बुक भी लिखी गई सी। विराट कोहली जी बुक लिखी गई सी, बायोग्राफी लिखी गई सी, उसका नाम सी ड्राइवन बुक भी विजय लोकापाली द्वारा ही लिखी गई सी। सचिन तेंदुलकर द्वारा बुक लिखी गई सी प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर द्वारा। वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाते हैं। क्रिकेट बेसिकली जो क्रिकेटर्स होंगे ने उन्होंने नाम के उत्ते बुक्स काफ़ी ज़्यादा पूछिया जांदियां ने। इस तो इलावा क्रिकेटर्स के बारे ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं। ये दो चीज़ां काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट बनदियां ने और काफ़ी एग्जाम के पूछे जाते। युवराज सिंह की गल करते हैं, जी इन्हों की बुक सी, बुक का नाम सी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, याद रखना है। सिमिलर तरीके अगर आप गल करिए सौरभ गांगुली की, तो सौरभ गांगुली की बुक सी 1 सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। इस तरीके बुक्स के नाम काफ़ी इंपोर्टेंट बनने, याद रखने। ठीक है, इस तो इलावा रोहित शर्मा को रिसेंटली ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर, वीगा के ब्रांड एम्बेसडर, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, होर भी काफ़ी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया सी रोहित शर्मा को। सचिन तेंदुलकर बारे याद रखना है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। और युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया सी, युवराज सिंह को आकाश इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर। और रिसेंटली एक होर चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया सी युवराज सिंह को। कमेंट बॉक्स के आंसर देना। नेक्स्ट है विच टीम हैज़ वोन वूमेंस T20 चैलेंज हैल्ड इन दुबई UAE। दुबई के वूमेंस T20 चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरीके आप डिस्कस किया कि IPL ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप गल करिए कल फाइनल सीगा IPL का। बेसिकली की गल है कि सैशन आप लाइव नहीं लेके आ रहे, सैशन रिकॉर्डेड होंगे, तो एक दिन पहले शाम को किया जाता है। बेसिकली तकरीबन 9-10 बजे इसनों सैशन रिकॉर्ड किया जाता है। सैशन आप जल्दी ही लाइव शुरू करांगे। उस तो बाद जी थोड़ी शिकायत है कि न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो जाती ने, तो आप बिल्कुल टाइमली न्यूज़ को डिस्कस कराया करांगे। ठीक है, तो वूमेंस T20 चैलेंज अज डिस्कस कर रहे हैं, IPL आप कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सिमिलर तरीके बिहार के इलैक्शनस बारे भी कल की क्लास के डिस्कस करांगे, डिटेल के भी डिस्कस करांगे कि कौन चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे। वूमेन T20 चैलेंज दुबई के ऑर्गेनाइज किया गया। टोटल 3 टीम्स द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, तो किहड़ी टीम सी? पहली 3 टीम सी, ये तो टीमें नहीं सी। ठीक है, तो यह अपने ऑप्शन कैंसल हो गए। तो 3 टीम्स के विचों किहड़ी टीम ने वूमेंस T20 चैलेंज जीते है? तो ट्रायल ब्लेजर्स द्वारा। ट्रायल ब्लेजर्स टीम है जी, इसके हैड से इसनों लीड कर रहे थे स्मृति मंदाना जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है, ट्रायल ब्लेजर्स टीम को लीड इन्होंने द्वारा किया जा रहा है। और सुपरनोवाज जी टीम है, इस टीम को लीड किया गया हरमनप्रीत कौर द्वारा। ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर ने। इन्होंने दोनों द्वारा अपनी टीम्स को लीड किया गया और इन्होंने
फाइनल्स इन्हां दोनों के खेलिया गया। ट्रायल ब्लेजर्स ने सुपरनोवा नूं तकरीबन 16 रन तो हराया। ठीक है, इंपोर्टेंट बनेगा कि जिन्ने भी अवॉर्ड दिते गए ने, फॉर एग्जाम्पल प्लेयर ऑफ द सीरीज़, ठीक है, होर भी जिहड़े अवॉर्ड सीगे सारे सुपरनोवा टीम ने जीते ने। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर ऑफ सीरीज़ की गल करिए तो प्लेयर ऑफ सीरीज़ राधा यादव अपॉइंट बने ने। राधा यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज़ सुपरनोवा टीम तो बिलोंग करते हैं। राधा यादव नूं ही मोस्ट विकेट्स, सब तो ज़्यादा विकेट्स लैण वाले भी इस टूरनामेंट के वूमेंस T20 चैलेंज के तकरीबन टोटल 4 मैचेस हैल्ड किए गए हैं। तो इन्हां दे विच सब तो ज़्यादा कह सकते हैं कि विकेट्स लेने वाले भी राधा यादव बने ने। टोटल 8 विकेट इन्हां द्वारा लित्तियां गईयां ने। दूसरी चीज़ अगर गल करिए तो मोस्ट रन सब तो ज़्यादा रन भी सुपरनोवा टीम के विचों बनाए ने। इन्हां दा नाम सीगा समथिंग चनारी अथापतु श्रीलंका तो बिलोंग करते हैं और सुपरनोवा टीम के सीगे। तकरीबन इन्होंने 117 रन बनाए, ये याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट एक होर चीज़ बनेगी कि वूमेंस T20 चैलेंज जो दुबई के ऑर्गेनाइज किया गया, किन्नवा एडिशन है, तीसरा एडिशन है। पहली गल याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसनों कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाना सी, इसनों जयपुर के ऑर्गेनाइज किया जाना सी। कोविड-19 के कारण इसनों पोस्टपोन किया गया। बाद इसनों जयपुर के ना होस्ट करके दुबई के होस्ट किया गया। ठीक है, BCCI बारे याद रखना है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया मुंबई के हैडकुआटर है और सौरभ गांगुली 39 नंबर के प्रेजिडेंट। ठीक है, न्यूज़ आप थोड़ी लेट जरूर डिस्कस करते हैं, पर न्यूज़ के कोई भी कमी नहीं होएगी। जिन्ने भी स्टैटिक फैक्ट्स ने सारे आप डिस्कस करते हैं, प्लस एडिशनल फैक्ट्स भी जिन्ने डिस्कस कर सकते हैं वधों वध डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 15th फाइनेंस कमीशन। न्यूज़ आप पहले डिस्कस की हुई है कि 15th फाइनेंस कमीशन के जोड़े हैड ने NK सिंह इन्होंने 9 तरीक को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी सी। एक चीज़ है जी अपनी स्किप हो गई सी, वो डिस्कस कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट का नाम स्किप हो गया सी। नाम सी फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स इंपोर्टेंट रहेगा कि फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स इस रिपोर्ट का नाम रखा गया। इस रिपोर्ट में 2021-22 तो लैके 25-26 तक के लिए यानी कि 5 साल के लिए रिलीज़ किया जाता है। और इस रिपोर्ट के किन्ना द्वारा टॉप किया किन्ना नूं सबमिट की जाती है तो प्रेजिडेंट नूं इस रिपोर्ट नूं सबमिट किया जाता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन ने? NK सिंह। प्रेजिडेंट कौन ने अपने? रामनाथ कोविंद। इस तो इलावा अगर आप गल करिए 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन सी? तो डॉक्टर YV रेड्डी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। इस तो इलावा क्वेश्चन का आंसर देना कि प्रेजिडेंट अपने किन्नवे नंबर के ने। ईजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किन्नवे नंबर के प्रेजिडेंट ने। ठीक है, सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर भी दसने किन्नवे नंबर के ने। लोक सभा दसनी है किन्नवे नंबर की है। ठीक है, इस तो इलावा वाइस प्रेजिडेंट दसने किन्नवे नंबर के ने। ठीक है, ईजी क्वेश्चन ने, काफ़ी ईजिली आंसर दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी दसने। ठीक है, बेसिकली पॉलिटी के भी स्टडी की होंगे, ये इंपोर्टेंट रहेंगे। इस तो इलावा CVC की गल करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी ने। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशनल कमिश्नर नाम इंपोर्टेंट रहेगा CIC की गल करते हैं। CIC कौन ने? इंडिया के CIC नवे अपॉइंट किए गए हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्राइम मिनिस्टर तो हर एक को पता होगा। कैग इंपोर्टेंट बनेंगे GC मुर्मू रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है जी। अच्छा, CVC का नाम संजय कोठारी नहीं है। CVC कौन ने? कमेंट बॉक्स में CVC का नाम दसना। ये संजय कोठारी ही ने। चलो मेरे माइंड चो स्किप कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में दसना। इस तो इलावा CBI के दसने। CBI के डायरैक्टर, इस तो इलावा अगर आप गल करिए और किस दे पूछ सकते हैं, रॉ दे डायरैक्टर। CBI के और रॉ दे डायरैक्टर कमेंट बॉक्स में दसने। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 6G टेस्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। अगर आप गल करिए इंडिया की, तो इंडिया तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का हजे 5G टैक्नोलॉजी अच्छे तरीके इंप्लीमेंट नहीं कर सकी, तो 6G कितों करेगी? तो किहड़ी कंट्री ने इसनूं किया होएगा? सब तो अगे चलती है जी कंट्री, चाइना द्वारा
वर्ल्ड की पहली 6G टैसट सैटेलाइट नू टैसट किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया। इसनू बेसिकली चाइना द्वारा, अगर आप गल करिए चाइना ने टोटल 13 सैटेलाइट्स नू लॉन्च किया, ठीक है, टोटल 13 सैटेलाइट्स नू लॉन्च किया चाइना द्वारा, जिस दे विचों 3 चाइना दी सीगियां और 10 सैटेलाइट्स अर्जेंटीना दी सीगियां। 10 सैटेलाइट्स किहड़ी कंट्री दी सीगियां? अर्जेंटीना। अच्छा, अर्जेंटीना बारे याद रखना है, ब्यूनो एयर्स कैपिटल है और करेंसी इत्थे पैसो चलती है, ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा होर के डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, सैटेलाइट्स की गल आई है तो एक चीज़ अपनी होर स्किप हो गई सी इंडिया बारे, जी आप इंडिया बारे डिस्कस किया सी कि जी अर्थ ऑबजरवेशन सैटेलाइट लॉन्च की, अर्थ ऑबजरवेशन सैटेलाइट है जी लॉन्च की गई है इंडिया द्वारा। इस दे नाल आपां डिस्कस किया सी कि 9 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई ने, 9 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई ने। होर तो जी 9 सैटेलाइट्स, बाकी 9 सैटेलाइट्स ने वो कित्थे दियां रिलीज़ कित्थे दियां लॉन्च की गई ने, वो आपां डिस्कस करनियां रह गई सी, ठीक है, वो डिस्कस कर लें। इन्हां दे विचों एक सैटेलाइट तो सी लिथुएनिया दी, लिथुएनिया कंट्री दी, 4 लग्जमबर्ग दी और 4 सीगियां USA दियां, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि एक सैटेलाइट लुथेनिया दी सी, 4 लग्जमबर्ग दी सी और 4 USA दी सी। जी इंडिया ने अर्थ ऑबजरवेशन सैटेलाइट 01 लॉन्च की सी, उस दे नाल इन्हां 9 सैटेलाइट्स नूं लॉन्च किया गया सी PSLV C49 द्वारा, ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा नैक्सट चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड इस्लामिक पर्सनल लॉज टू अलो कोहैबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल्स। बेसिकली की होया कि एक कंट्री द्वारा, जो कि काफ़ी, अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की गल करते हैं तो इन्हों के लॉज ने जोड़े काफ़ी ज़्यादा कट्टर, कहने कि कट्टर हो सकते हैं, ठीक है, कट्टर होंगे ने। तो इन्हों के एक कंट्री ने की करा कि अपने लॉज के कुछ रिलैक्सेशन दित्तियां ने, ठीक है, इन्हों के काफ़ी लॉज ने जिन्होंने इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, जिस इंपोर्टेंट बनता है कि कोहैबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल्स, ठीक है। या अगर आप गल करिए दूसरी भाषा के लिविंग रिलेशनशिप नू परमिशन दी है तो किहड़ी कंट्री है? UAE, ठीक है, थर्ड ऑप्शन UAE। इस तो इलावा अगर गल करिए कुछ लिक्विड एल्कोहल की गल करिए तो एल्कोहल के रिलेटेड भी कोई लॉज चेंज किया गया सी। अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा कि इस्लामिक पर्सनल लॉज दे कह सकते हैं रिलैक्सेशन देने वाली किहड़ी कंट्री बनी है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि इस्लामिक पर्सनल लॉज दे विच रिसेंटली रिलैक्सेशन किहड़ी कंट्री द्वारा, किहड़ा आंसर है UAE, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बांग्लादेश द्वारा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन की गई सी, याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए नेपाल दे विच पशुपतिनाथ टैंपल दे लई, पशुपतिनाथ टैंपल नू इंडिया इस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसनू री इनोवेट करने दे विच हैल्प कर रहे हैं। बांग्लादेश की गल करते हैं, बांग्लादेश दे विच रिलेटेड भी इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया सी। मेरे माइंड जो स्किप कर रहा है किस चीज़ के लिए बांग्लादेश के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया सी। इस तो इलावा अगर आप बांग्लादेश की गल करते हैं, फैनी ब्रिज का रिसेंटली मसला सीगा जिहड़ा सॉल्व किया गया सी बांग्लादेश के नाल। बांग्लादेश की गल करते हैं तो डे नाइट टेस्ट मैच या पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलिया गया सी बांग्लादेश के नाल। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बिल्कुल रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया गया। कोविड-19 की 3 मिलियन डोसिज प्रोवाइड की जाएगियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाल। ये सारे फैक्ट्स याद रखने। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले UAE बारे आप डिस्कस कर लिया। नेपाल के रिलेटेड डिस्कस करिए तो नेपाल ने की किया, एक बुक रिलीज़ की है महात्मा गांधी की 151st बर्थ एनिवर्सरी लंघ के गई है, पर डिस्कस की थी 2 अक्तूबर को। इस नू ही कमैमोरेट करने के लिए नेपाली लैंगुएज दे विच बुक रिलीज़ की है महात्मा गांधी के उत्ते नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी द्वारा। बुक है मेले बुजेको गांधी, मेले बुजेको गांधी, या कह सकते हैं द गांधी एज आई अंडरस्टूड, द गांधी एज आई अंडरस्टूड। नेपाली लैंगुएज के विच इस बुक नू रिलीज़ किया गया। अच्छा, नेपाल द्वारा रिसेंटली मनोज मुकुंद नरवाने नू इंडिया के आर्मी चीफ नू ऑनररी रैंक ऑफ नेपाली जनरल ऑफ नेपाल आर्मी दिता गया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं 600 करोड़ रुपए के, 600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किहड़ी सिटी के विच लॉन्च किए जा रहे हैं। सिटी पूछी गई है, स्टेट भी पूछी जा सकती है। तो सिटी याद रखनी है वाराणसी और स्टेट है UP।
तकरीबन बेसिकली 15 प्रोजैक्ट्स ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਰੀਬਨ 614 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਸਾਰਨਾਥ ਵਾਰਾਣਸੀ। ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਨਾਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। बेसिकली इन्हों की लाइफ स्टोरी गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी के बारे दसिया जाएगा इस दे विच, और इस प्रोजैक्ट के विच जिस दे विच जिहड़ी साउंड होएगी अमिताभ बच्चन की होएगी, ठीक है। इफैक्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। नैक्सट है मुंबई, और बेसिकली गल करते हैं हाइपर लूप। हाइपर लूप के रिलेटेड अगर आप गल करिए तो हाइपर लूप की है, बेसिकली ट्रैवल करने का एक तरीका है, जिस तरीके आप ट्रेनस तो ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल व्हीकल्स कार वगैरह तो ट्रैवल कर रहे हैं, इस तो इलावा एयर ट्रैवल कर रहे हैं बाय एयर। सिमिलर तरीके नाल हाइपर लूप की है कि ट्यूब बना दी जाएगी, इस ट्यूब के विच एक ट्रेन के तरीके नाल होएगी जो कि वैरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट होएगी ट्रैवल करने के लिए। तो इंडिया के विच किहड़ी सिटीज़ नूं कनैक्ट करने के लिए प्रोजैक्ट लगाया जाएगा है मुंबई टू पुणे। ये प्रोजैक्ट हजे लगाया जाएगा, ठीक है, याद रखना, हजे प्रोजैक्ट लगाया नहीं गया, लगाया जाएगा मुंबई टू पुणे, जो कि सिर्फ जर्नी नूं 25 मिनट का कर देगा। मुंबई तो पुणे तकरीबन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस आई थिंक, और तकरीबन 25 मिनट का यह रिड्यूस कर देगा टाइम पीरियड में। 200 किलोमीटर 25 मिनट के ट्रैवल करना काफ़ी अच्छी गल रहेगी। पर इस दे लई न्यूज़ दे विच क्यों आया है कि इस दे लई इसनूं शुरू करने के लिए एक टैसट कंडक्ट किया गया लास वेगस USA दे विच टैसट कंडक्ट किया गया, ठीक है, USA दे विच इस दे लई टैसट कंडक्ट किया गया, याद रखना, ठीक है। इस दे विच बेसिकली जिहड़े स्पेस एक्स के CEO, स्पेस एक्स सुनी होगी तुसीं, आप काफ़ी बार डिस्कस की है। स्पेस एक्स के जिहड़े CEO ने एलन मस्क, उन्हों का काफ़ी ज़्यादा रोल है इस चीज़ नूं शुरू करने के लिए इंडिया दे विच। नैक्सट है दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट तीसरा ऑपरेशनल एयरपोर्ट बनया बिहार दा आफ्टर पटना एंड गया। बिहार दा पटना और गया, दो एयरपोर्ट्स ने बिहार दे विच, और तीसरा एयरपोर्ट बनया दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दरभंगा एयरपोर्ट किहड़ी स्टेट दे विच है, बिहार दे विच, या बिहार का तीसरा एयरपोर्ट किहड़ा बनया, दरभंगा। नैक्सट है इन विच स्टेट हॉट एयर बैलून फैसटिवल। अच्छा, पंजाब के एयरपोर्ट दसने ने, पंजाब दे विच टोटल कितने एयरपोर्ट्स ने। हॉट एयर बैलून फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरीके आप डिस्कस किया सी काइट फैसटिवल। काइट फैसटिवल कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया सी, अहमदाबाद गुजरात दे विच। सिमिलर तरीके नाल हॉट एयर बैलून फैसटिवल कित्थे शुरू किया गया, ये शुरू किया गया उत्तराखंड दे विच, उत्तराखंड दे बेसिकली मसूरी दे विच, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात दे विच काइट फैसटिवल, काला घोड़ा फैसटिवल मुंबई दे महाराष्ट्र दे विच। सिमिलर तरीके नाल उत्तराखंड दे मसूरी दे विच हॉट एयर बैलून फैसटिवल इनोग्रेट किया गया। इसी दे नाल मैजिस्टिक उत्तराखंड एग्जीबिशन भी लॉन्च किया गया, फोटो एग्जीबिशन है, प्लस हील विद व्हील्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया उत्तराखंड दे विच, ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा न्यूज़ ने कुछ और डिस्कस कर लेने। सब तो पहले हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉ बनाए गए हैं अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जनस। बेसिकली की है कि अगर कोई किसी परसन को फोर्सफुली अपना रिलीजन चेंज करने के लिए फोर्स किया जाता है तो उसके अगेंस्ट लॉ फ्रेम किया गया हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश द्वारा ही एक फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल लैवी फेयर, एक मेला कह सकते हैं लैवी फेयर। ये बेसिकली हॉर्सिस की एक स्पीसीज होंगी है चमुर्थी हॉर्सिस नूं डेडिकेट किया जाता है इस फैसटिवल दे विच इंटरनेशनल लैवी फैसटिवल। इसनूं पोस्टपोन करने के लिए अनाउंस किया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर अवार्ड। ये न्यूज़ आप कल नहीं डिस्कस की थी, स्किप हो गई सी अपनी। डॉक्टर BR अंबेडकर अवार्ड दिता गया सुनील शेट्टी नूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इस अवार्ड नूं दिता गया है सुनील शेट्टी नूं फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशनस ड्यूरिंग
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनैक्टिविटी इंटरनेट कनैक्टिविटी प्रोवाइड की गई है ऑल स्टेट कॉलेजिज एंड यूनिवर्सिटीज़ नूं। ठीक है जी, आज दे लिए बस इन्ना ही। सैशन थोड़ा लंबा चला गया अज अपने, इस करके आप स्टैटिक फैक्ट्स नहीं डिस्कस किए या पुरानी न्यूज़ नहीं डिस्कस कीतियां स्टेट्स दियां जिहड़े लास्ट दे विच क्वेश्चन आए ने अपने स्टेट्स के। नैक्सट सैशन के डिस्कस कर लांगे। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।